Good evening, sir. Very good evening. How are you? I'm good. What about you? Yeah, I'm doing great. Thank you. So, can you please put off your light behind you? That is giving a lot of reflection. Just behind you. Oh, Yeah, either or you can change the direction. Yes, it is better now. That's fine. okay, sir. So, how do you find my background today? It's good. It's, I think it's Galaxy. Whatever, I don't know, but I found it like I felt better about this background, so I thought let's give it a try. All right, it's good that you always have this smiling face, which is good, which is like which shows a lot of confidence, and it should be there, right? So, is there anything which we should talk first? I mean, any practice, anything which you did at your end uh, as a practice? I did, I the what the words that we learned yesterday. I tried to make sentences with this. Can I can I explain it? Yeah, That please go ahead. I wrote it in a copy. So Hmm. when I moved around with my friend, I came across a beautiful garden full of flowers and flowers. When I was cleaning my house, I came across my grandmother lost gold jewelry. Jeweler. क्या बोलूं Jewelry. jewelry. Whatever I learned yesterday, I try to remember that things. Whatever I experienced in past, I try to forget. Okay. Or the criminals ruined that old man house and escaped from there. And Mhm. escaped from there. After that, old man tried to fix his house, Mhm. and now he is afraid of that criminals. Wonderful. हाँ, इतना ही था और इतना ही था। तो ये वाला भी सेंटेंस, ये वाला भी बोलना पड़ेगा आपको कि जैसे मुझे नहीं पता चल रहा, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि जय अगला आएगा, अगला आएगा, अगला आएगा। तो वंस यू आर डन, यू हैव टू से दिस थिंग, दैट्स इट, दैट इज इट। कैसे बोलते हैं उसको? दैट्स इट। दैट्स इट। और उसको अगर ये तो पता ही होगा आपको, जो आप ऐसे कॉमन लगा के एस लिखते हैं, उसका मतलब इज होता है ना? यस। तो दैट इज इट या दैट्स इट, तो मुझे पता चल जाएगा कि अब हो गया आपका। गुड। सो what is your feeling like after making these sentences, after doing practice with the help of these vocabularies? What is your experience? What do you feel? My confidence is now boost up and 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 I could able to memorize words, and I could able to memorize words. right? मैं कुछ शब्द मेमोराइज कर सकता हूँ इससे, है ना? एंड माई कॉन्फिडेंस इज बूस्टिंग। और अगर आप ये कहना चाहते हो कि हर एक दिन, मतलब एक एक दिन में, हर एक दिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है, तो माई कॉन्फिडेंस इज गेटिंग, या ऐसे बोल सकते हो माई कॉन्फिडेंस इज गेटिंग बूस्टेड एवरी पासिंग डे। एवरी पासिंग डे जब लगा देंगे, यानी कि हर एक दिन जो गुजर रहा है ना? Okay. जी। Every- किसी भी चीज में अगर आपको ऐसा बोलना है, पासिंग डे, जैसे
every passing day I can see that you are improving. Every passing day you are getting better and better. हर दिन आप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हो, आप बेटर बेटर होते चले जाओ, which is a good sign. And as I told you initially, initially के क्या मतलब होता है? पीछे पहले, शुरुआत में, स्टार्टिंग। पहले। बहुत बढ़िया। तो as I told you initially कि if you do practice whatever I'm telling you, whatever I'm asking you to do, if you could manage to do even 25% of that, अगर आपसे मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ और आगे जो कुछ भी कहूंगा, if you could manage to do 25% of that, you can become much better in very less time. Okay? क्या मतलब वो इसका जो मैंने बोला सारा कुछ? अगर मैं जो भी बता रहा हूँ उसका 25% भी अगर मैं याद रखता हूँ तो मैं बेटर होते जाऊंगा। करेक्ट। अगर उसका 25% भी फॉलो कर लिया आपने तो यू वुड बिकम मच बेटर, और उससे ज्यादा किया तो जाहिर सी बात है और अच्छे होंगे, राइट? सो यू नीड नॉट टू मिस थिंग्स। जैसे कोई अगली एक्सरसाइज ऐड हुई आपके काम में, तो उसको तो करना ही करना है, और जो पीछे आप करते चले आ रहे हो वो भी साथ में चलेगी। तो एक्सरसाइज वुड ऑल्सो कंटिन्यू साइमल्टेनियसली, है ना? साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियस नहीं पता। साथ साथ। साथ साथ। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है, जैसे आप कह रहे हो ना कि जो पहले वाली एक्सरसाइज और जो अब नई एक्सरसाइजेज आ रही हैं वो दोनों चलती रहेंगी साथ साथ। नई वाली भी करना और पहले वाली भी भूलना नहीं, उसको भी साथ साथ चलना है लेके। तो बोथ द एक्सरसाइजेज वुड गो साइमल्टेनियसली। यू हैव टू डू बोथ द एक्सरसाइजेज साइमल्टेनियसली। ओके। तो अब आपको एक वर्ड मिला साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस बोलना हो, जैसे मैं चाय के साथ साथ टीवी भी देख रहा हूँ, या इसके साथ साथ वो भी हो रहा है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आई वॉक विथ माई फ्रेंड्स साइमल्टेनियसली। आई एम प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स साइमल्टेनियसली। थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है बोलने में, तो इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखिए आपको, अब देखिए दूसरी लर्निंग क्या है कि जो वर्ड आपको मुश्किल लगेंगे, चाहे लंबे होंगे या मुश्किल लगेंगे, तो उसको सीखने का क्या तरीका है? एनी आइडिया? आपने हिंदी में एक चीज पढ़ी होगी, संधि विच्छेद। पढ़ी है? नहीं पढ़ी? पढ़ी होगी, याद नहीं है। याद नहीं है? पढ़ी होगी, याद नहीं। संधि विच्छेद का मतलब सिंपली क्या होता है? वर्ड को ब्रेक कर देना, लंबे वर्ड को दो या तीन पार्ट में ब्रेक कर देना। जैसे साइमल्टेनियसली आपको लंबा वर्ड लग रहा है, तो साइमल प्लस टेनियस प्लस एल वाई, साइमल्टेनियसली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो उसको ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक करके अलग अलग पढ़ेंगे। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, फिर ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे 8-10 बार। तो आप यू वुड बी इन ए पोजिशन टू प्रोनाउंस दैट वर्ड इन ए राइट वे, इन ए करेक्ट वे। ओके। तो अभी जैसे आप कर रहे हो, तो अभी अब आपका होमवर्क हो गया, अब आपकी इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि जब आप बोलने जाओ कोई सेंटेंस, जैसे आप बोलना चाह रहे थे, आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स साइमल्टेनियसली आई वॉज सिंगिंग, मैं उनके साथ वॉक कर रहा था, साथ साथ में गाने भी गा रहा था। तो आपको फ्लुएंटली ये वर्ड फट से निकल जाए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? वेरी नाइस। आइए आपको लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू ग्रीट अदर्स। ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स क्या होती है? किसी का ग्रीटिंग को वो मतलब हिंदी इसकी नहीं समझ में आती ना, मतलब किसी को किस सलाम,
सलाम दुआ नमस्ते गुड मॉर्निंग, ये सब क्या कहलाता है? ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग। तो हाउ टू ग्रीट अदर्स, आइए सीखते हैं, देखते हैं कि आपको कितना पहले से पता है। क्या बोलते हैं, उसका रिस्पॉन्स क्या देते हैं। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सीखिए, उसमें इंपॉर्टेंट है। इफ आई से ग्लैड टू मीट यू, क्या मतलब हुआ इसका? आपसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, तो मैं आपसे कहता हूँ ग्लैड टू मीट यू, तो आप क्या रिस्पॉन्स दोगे? मी टू। हाँ, लाइक ग्लैड टू मीट यू टू, ऐसे पूरा बोलेंगे, ग्लैड टू मीट यू टू। ग्लैड टू मीट यू टू। ट्रू, बहुत बढ़िया। इफ आई से हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स। हाँ, आई एम आस्किंग टू यू हाउ आर थिंग्स। नहीं पाना। सिंपल है। जैसे हाउ आर यू, आपको पूछ रहे हैं हाउ आर यू, तो आप जानते हो कि आई एम फाइन बोलते हैं, आपके बारे में पूछ रहा हूँ। हाउ आर थिंग्स बोल रहे हैं तो मतलब चीजें कैसी हैं, सब कुछ कैसा है, आप कैसे हो, आपकी सेहत कैसी, घर वाले कैसे हैं। तो ओवरऑल पूछ रहे हैं हाउ आर थिंग्स, मतलब आपकी लाइफ कैसी चल रही है। तो अब क्या रिस्पॉन्स होगा? हाउ आर थिंग्स। इसका भी सेम ही होगा। क्या होगा सेम? फाइन। हाँ, आप एक वर्ड में अगर बोलोगे फाइन तो चल जाएगा कि सब कुछ सही है, फाइन। लेकिन अगर आप एक सेंटेंस में बोलना चाहो हाउ आर थिंग्स, तो थिंग्स में पूछना यानी बहुत सारी चीजें इसमें आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कैसे हैं, आपकी सेहत कैसी, घर वाले कैसे हैं, बाकी चीजें कैसी है, पढ़ाई कैसी चल रही है, जॉब कैसी चल रही है। तो इफ आई एम आस्किंग हाउ आर थिंग्स, तो आपका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। आपने फाइन बोला था तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर पूरा सेंटेंस बोलोगे तो और लर्निंग होगी, आप और सही से समझोगे। एवरीथिंग इज फाइन। इफ आई से लॉन्ग टाइम नो सी, if I say to you long time no see, क्या मतलब हुआ इसका? मैंने लंबे समय से आपको नहीं देखा। तो बताइए इसका रिस्पांस क्या देंगे, अगर मैं आपसे कहूँ शहबाज लॉन्ग टाइम नो सी, व्हाट रिस्पांस वुड यू गिव? कुछ आइडिया नहीं मेरे को। आइडिया, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई बहुत दिनों से नहीं मिले, तो उसका जवाब क्या हो सकता है लॉजिकली? कि भाई बिजी था, एग्जाम्स चल रहे थे, शहर में नहीं था, है ना, गांव गया था, नानी के यहाँ गया था, तबीयत नहीं ठीक थी, यही हो सकता है ना। तो इनमें से कोई भी जवाब दे सकते हो। यस, आई वॉज बिजी इन माई एग्जामिनेशन, आई वॉज बिजी इन माई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एग्जामिनेशन। हाँ, आई वॉज बिजी इन माई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, आई वॉज बिजी इन सम असाइनमेंट, आई वेंट टू नानीज प्लेस, दैट्स वाई यू कुड नॉट सी मी, है ना। या आई वॉज नॉट डूइंग वेल, आई फॉलन सिक, माई हेल्थ वॉज नॉट गुड। ये सारे आंसर्स आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक वर्ड सीखने का है, उसको बोलते हैं लेटली। लेटली का मतलब होता है पिछले कुछ टाइम से। लेटली। हाँ, लेट होता है ना, लेट का मतलब देर, उसी में एल वाई लग गया। तो अगर आपको ये कहना है पिछले कुछ टाइम से मैं बिजी था, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे? आई वॉज बिजी लेटली, या लेटली पहले लगा के बोल देंगे लेटली आई वॉज बिजी। इससे मतलब पता चल जाता है पिछले कुछ समय से आप बिजी थे, तो आपका जवाब हो जाएगा। मैंने पूछा भाई लॉन्ग टाइम नो सी, तो आपने बोला लेटली आई वॉज, बिजी। समझ गया मैं कि पिछले कुछ टाइम से आप बिजी थे। अब इसमें कॉन्वर्सेशन को अगर बढ़ाया जाएगा, तो मैं पूछ सकता हूँ तुमसे, अगर हम क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो मैं पूछ सकता हूँ यार शहबाज व्हाट हैव यू बीन डूइंग, इन व्हाट यू वर बिजी, वेर एवर यू वर बिजी, कहाँ बिजी थी, क्या कर रहे थे, किस चीज में बिजी थे। तो हमारा कॉन्वर्सेशन और फर्दर बढ़ता चला जाएगा। कॉन्वर्सेशन फर्दर बढ़ता चला जाएगा मतलब क्या होगा इसका, फर्दर का आगे। आगे, बहुत अच्छे, फर्दर का मतलब आगे। तो इस जैसे आई एम गोइंग यूनाइटेड स्टेट, फॉर माई फर्दर स्टडीज,
और हायर स्टडीज, चलो, आगे आगे की पढ़ाई के लिए मैं यूनाइटेड स्टेट जा रहा हूँ। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई एम गोइंग यूनाइटेड स्टेट फॉर माई हायर स्टडीज। गॉट इट? आर यू गेटिंग इट? yes sir, I got it. हम्म। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स हॉट, व्हाट्सअप, ये तो सुना ही होगा व्हाट्सअप। ये सुना What's है? up? बोलो। व्हाट्सअप, ये सुना है वर्ड? कोई बोलता है? हम्म, नहीं सुना है? नहीं। नहीं सुना है। तो जनरली हम ऐसे बोलते हैं किसी से मिलते हैं, जैसे मैं आपसे मिला, व्हाट्सअप, मतलब क्या चल रहा है। सिंपल भाषा में क्या चल रहा है, उसको दो हम्म, तीन तरह से बोलते हैं। व्हाट्सएप जनरली बोला जाता है, उसको व्हाट्स हॉट भी बोल सकते हैं, व्हाट्स न्यू भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली क्या बोला जाता है? व्हाट्स अप। ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा, क्या चल रहा है? तो इसका जवाब कुछ भी हो सकता है। जैसे पहला जवाब हो सकता है, जैसे हम जनरली जो जवाब देते हैं वो कुछ खास नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं शहबाज क्या चल रहा है हिंदी में, तो आप क्या कहोगे? अगर मान लीजिए कुछ खास नहीं कुछ चल रहा खास तो क्या नहीं। बोलोगे? कुछ खास नहीं। लेकिन अगर कुछ चल रहा होगा तो आप क्या बोलोगे? जैसे मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, चल रहा है खास आपके लाइफ में, तो मैंने पूछा व्हाट्सअप, तो क्या बोलोगे आप? I am preparing for my competitive examination. वंडरफुल, ये आंसर होगा इसका। जब कुछ नहीं चल रहा होगा तो नथिंग मच बोलेंगे, और जब आप कुछ कर रहे होगे स्पेसिफिकली, कैटेगोरिकली, तो आप बोलोगे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये आंसर होगा। Examination. गॉट इट? तो एक बार दोबारा से मैं पूछता हूँ, ये सारे जो मैंने Yes. पूछे आप जवाब दोगे अब। ग्लैड टू मीट यू मिस्टर शहबाज। Mm, Glad to glad to you. Glad to you बोलेंगे। सेम बोल के टू लगा देंगे, ग्लैड टू मीट यू टू। Oh, glad to meet you too. ऐसे बोल सकते हैं, है ना? या इट्स माई प्लेजर, आपसे मिलकर खुशी हुई, ये भी बोल सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं? इट्स माई प्लेजर। It's my pleasure. हाउ आर थिंग्स? Everything is good. वंडरफुल, गुड आंसर। लॉन्ग टाइम नो सी। I was not at my home. ओके, सो आई वॉज नॉट एट माई होम, आई वेंट आउट स्टेशन, मैं शहर के बाहर गया था। क्या शहर के बाहर जाने को क्या बोलेंगे? आउट स्टेशन, आई वॉज आउट स्टेशन, स्टेशन के Out. बाहर था, यानी शहर के, इसका मतलब होता है कि अपने शहर में नहीं था। आई वॉज नॉट इन टाउन, आई वॉज आउट स्टेशन, ऐसे बोला जाता है। ठीक है? व्हाट्सअप। Okay. What's up? Currently, I am preparing for my current competitive examination. वंडरफुल, तो अब ये हो गया। ठीक है, आपको सेशन जब खत्म हो जाएगा तो मैं ये क्वेश्चन आपको उसमें इनबॉक्स में दे दूंगा, और इसके आंसर आप अपने इसको क्वेश्चन लिख लेना और अपने इसके आंसर नोट कर लेना और इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है? Okay. क्योंकि अभी करेंगे तो उसमें वक्त खराब होगा हमारा। आई डोंट वांट टू स्पॉइल टाइम। क्या मतलब हुआ इसका स्पॉइल का? कोई बर्बाद होगा। यस, खराब करना, बर्बाद करना। तो मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, हम दोनों का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता लिखने में। तो दीज आर कॉल्ड ग्रीटिंग्स। क्या कहलाती हैं ये? Greetings. तो आपने सीखी, और भी इस तरह से है। पहले इतना सीखो आप, जो इसी तरह से मिलती जुलती है सब। जैसे आप किसी से मिले, आप किसी को लाइक हाउ यू, ये सब जानती हो आप, आई एम फाइन थैंक यू, ये बोलते हैं ना। आपसे मिलकर खुशी हुई, तो क्या बोलोगे? ग्लैड टू मीट यू, या इट्स माई Nice. प्लेजर, नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू। ग्लैड का मतलब भी वही होता है, प्लेजर टू मीट यू। तो
ये हो गया ग्रीटिंग। ठीक है, अब इसमें जो 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 वर्ड सीखे आपने, कौन कौन से वर्ड नोट किया है, क्या आपने नहीं किया है? नहीं अभी किया है। आपने एक वर्ड सीखा साइमल्टेनियसली, एक वर्ड सीखा है, एक वर्ड सीखा आपने क्या, स्पॉइल सीखा। हम्म, आज मंसूर कहाँ रह गए? हैवंट ज्वाइंड येट। चलो और थोड़ी सी और ग्रीटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम्म, अगर आपसे मैं कहता हूँ हाय गुड इवनिंग, गुड टू सी यू अगेन, हाय गुड इवनिंग, गुड टू सी यू अगेन। is the गुड टू सी यू अगेन। अगेन का मतलब हो गया दोबारा, है ना? और गुड टू सी यू मतलब अच्छा लगा आपसे मिलके, दोबारा आपसे मिलके अच्छा लगा। एक बार मिले थे हम पहले, और आपसे दोबारा मिल रहे हैं, तब मैं कह रहा हूँ गुड, हाय गुड इवनिंग अगर बोल रहा हूँ तो वो तो ग्रीटिंग होगी। और उसमें ये बोल रहा हूँ गुड टू सी यू अगेन, इसका मतलब हो गया दोबारा आपसे मिलके अच्छा लगा, तो इसका जवाब क्या होगा? मुझे भी। यहाँ पे बोलोगे सेम हियर। क्या बोलोगे? same here. तब आप बोलोगे सेम हियर, हमें भी अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा, हम जनरली बोलते हैं जैसे हाय हाय हाय, कई लोग बैठे होते हैं, ये वर्ड तो सुना ही होगा, हाय गाइस, सुना है? Yes, Sasman. तो कब बोलते हैं? जब तीन चार लोग बैठे हैं और आप, जैसे मान लीजिए तीन चार दोस्त आपके बैठे हैं, आप गए हाय गाइस, है ना, बोलते हैं ऐसे, हाय गाइस हाउ व्हाट्सअप, ऐसे बोले हाय गाइस व्हाट्सअप, तो क्या चल रहा है? तो उसमें तो कोई बोलेगा अरे आओ बैठो खेल रहे हैं हम लोग, वी आर प्लेइंग समथिंग, वी आर प्लेइंग प्लेइंग कार्ड, वी आर प्लेइंग कैरम बोर्ड, या कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाय गाइस, गाइस की जगह एक वर्ड होता है फोक्स, उसको फोक्स भी बोलते हैं, FOLKS, फोक्स, उसको पढ़ा जाता है फोक्स। तो जैसे कोई बोलता Fox. है हाय फोक्स, तो फोक्स का मतलब भी क्या होता है? गाय का, गाइस का Guys. सिनोनिम है। तो आप किसी, कोई अगर आपसे आप सुनते हो कि कोई बोलता है हाय फोक्स, तो उसका मतलब भी समझ जाना कि क्या है, गाइस वाला ही है ना? Okay. हाउ इज लाइफ, हाउ इज लाइफ, देखो सब मिलते जुलते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है, लेकिन हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं लोग, अलग अलग तरीके से हमको समझ जाना चाहिए। तो अगर मैं बोलता हूँ हाउ इज लाइफ, Life देखो यहाँ पे is भी, सभी नहीं यहाँ का भी सेंस इन वही है कि मतलब कैसे हो, ठीक है सब कुछ। हाउ आर यू जैसे पूछते हैं, इसको दूसरे तरीके से हम पूछ रहे हैं। अगर मैं पूछ रहा हूँ हाउ इज लाइफ, लाइफ का मतलब ये है ना तुम कैसे हो भाई, क्या चल रहा है, ठीक ठाक है सब। तो वहां का भी आंसर क्या हो, जैसे जैसे पूछा हाउ इज लाइफ, तो बोलो एवरीथिंग इज फाइन, या आप उसको लाइफ से बोलना चाहते हो लाइफ इज गुड। समझ आ रहा है? yes, sir. सिमिलर वर्ड्स हैं, आपको बस ध्यान देना है, क्या सेंस निकालना है इसमें कि क्या पूछा जा रहा है मुझसे, इसका सेंस क्या है। एक चीज जो आप सीधी सीधी जानते हो, हाउ आर यू, आपने बचपन से सुना है तो आपको पता है आई एम फाइन, लेकिन यही चीज को अगर अलग अलग तरीके से बोला जाए तो उसमें सेंस निकाल लो आप कि क्या पूछा जा रहा है। हाउ इज लाइफ मतलब हमारे जीवन के बारे में पूछ रहा है, हमारे बारे में, तो बस अच्छा है तो बोल देंगे एवरीथिंग इज गुड, लाइफ इज गुड। अगर इसी का दूसरा जवाब देना, जनरली जो हम देते नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ चला तो हम किसी से बताते थोड़ी हैं, हम तो अपने ही तक रखते हैं ना, कोई क्लोज फ्रेंड है तो शायद उसको बता दें। और तो उसका दूसरा जवाब क्या हो सकता है, हाउ इज लाइफ, यार थिंग्स आर नॉट गुड,
My health is not good. Lately, I am not feeling well. I'm in depression. You know, I have been falling sick every now and then. हर थोड़े थोड़े टाइम पे मैं बीमार पड़ रहा हूँ. तो आई हैव बीन Mhm. फॉलिंग सिक एवरी नाउ एंड देन. एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है जो बार बार कोई चीज होती है. ये एक आपके लिए इडियम है, स्पेशल वर्ड है जो आपको सीखना है. एवरी नाउ एंड देन जब भी किसी सेंटेंस में लगा देंगे तो वो मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल में वो हो रहा है. जैसे एवरी नाउ एंड देन आई एम फॉलिंग सिक. एवरी नाउ एंड देन आई हैव टू ट्रेवल, मतलब हर थोड़े दिन पे. अभी दिल्ली से तुम आए हो, अगर 15 दिन बाद फिर दिल्ली जाना पड़े, फिर 15 दिन बाद मुंबई जाना पड़े, फिर 10 दिन बाद कहीं जाना पड़े, तो ट्रैवलिंग हमेशा हो रही है ना, लगातार. तो व्हाट इज हैपनिंग? ट्रैवलिंग इज हैपनिंग एवरी नाउ एंड देन. Then, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. walaikum assalam. यस, चलिए. तो मिस्टर मंसूर इज हियर. ही इज लुकिंग क्वाइट नाइस टुडे. I am taking bath right now. आई एम I सॉरी. have taken bath. Oh, me too. Even I have taken shower. But you never said that I'm looking great, and even my background is quite amazing today. Yes, your background is like a universe. Like universe, I'm sitting on the moon right now and taking session. You are on moon and me and Shabaz are on the earth. So I can easily say that I am on the top of the world. Yeah. You are on top of the earth. Top of the world, and you both Top are of the world. on top of the earth. Bottom. Bottom of the Yes. earth. Anyways, Bottom of the earth. so we were talking about greetings. Okay. Okay. तो ग्रीटिंग से आप क्या समझते हो? Greetings. I think greeting means thankful. Be thankful. बी थैंकफुल. या जो हम लोगों को सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रीटिंग्स. Abhinandan. अभिनंदन, दैट्स द वर्ड इन हिंदी. ये देखिए, ही इज मास्टर, ही इज ए लेक्चरर इन जामिया मिलिया इस्लामिया. है ना? सो हम लोग ग्रीटिंग की बात कर रहे थे. तो ग्रीटिंग अभी इनसे बात कर ली. वी वर लाइक टॉकिंग अबाउट दिस. तो आइए देखते हैं कि आपको कितनी ग्रीटिंग्स पता है. ये टर्मिनोलॉजीज आपने सुनी है कि नहीं. अगर सुनी है तो उसका रिस्पॉन्स देते कैसे हैं आप. ठीक है. तो इफ आई से ग्लैड टू मीट यू. Glad to meet you. Glad or greeting same है? Are both same? नहीं, ग्रीटिंग के अंदर ये बातें आ रही हैं. हम ग्रीटिंग की बात करें. अच्छा, ग्रीटिंग इज अच्छा. हेडिंग. अब इसका पहला सवाल क्या है? Okay. पहली ग्रीटिंग क्या दे रहा हूं मैं आपको? ग्लैड टू मीट यू. अब इसका रिस्पॉन्स देना अगर समझते हो आप तो. I am happy to meet you. तो एक वर्ड और लग जाएगा आपसे. मुझे भी खुशी हुई मिल के. मुझे भी, तो भी के लिए टू लग जाएगा ना. ऑल्सो या टू, TOO. तो आई एम हैप्पी टू मीट यू टू. I am happy to meet you. I am happy to meet you too. यस, बहुत अच्छा. तो I am ऐसे happy भी, to meet you too. तो ऐसे भी बोल सकते हैं शहबाज ना. आई एम ग्लैड टू मीट यू टू, या आई एम हैप्पी टू मीट यू टू. है ना? जी. ठीक है, बहुत अच्छे. यानी पहला वाला आपको पता था. दूसरे वाले पे आ जाते हैं. हाउ आर थिंग्स? मंसूर, हाउ आर थिंग्स? These are going well. सॉरी, कम अगेन. All about is going well. Everything is going well.
everything is going well. यस, तो आप समझ गए इसका मतलब, हाउ आर थिंग्स मतलब चीजें कैसी चली, सब कुछ कैसा चल रहा है। हाँ, तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। well. नाइस, गुड, Everything बहुत is going बढ़िया, well. बहुत बढ़िया। अगला आपका जो ग्रीटिंग है वो, लॉन्ग टाइम नो सी मंसूर, वेयर एवर यू हैव बीन, लॉन्ग टाइम नो सी। Actually, I was busy with my family. As you ओके, know, I have 2 kids, and they were ill. So I had to go to consult the doctor. And last 1 week to 10 days, I had to go to doctor. And this is the reason, because this is the reason you could not see me. वंडरफुल वंडरफुल, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। एक बार ताली हो जाए इनके लिए, बहुत शानदार जवाब दिया इसने। हाँ भाई शहबाज, ताली तो Thank करो you. यार एक बार, खुद क्योंकि के लिए भी बहुत, ताली. हाँ, तो खुद के लिए भी आप, यू कैन पैट योर बैक, इफ यू आर नॉट एबल टू Hmm. पैट योर बैक यू कैन पैट योर चेस्ट। Yes. ओके, सो गुड आंसर, लॉन्ग टाइम नो सी। तो एक वर्ड यहाँ पे सीखने के लिए है, ऑफ लेट। ऑफ लेट का मतलब होता है, सॉरी, लेटली। लेटली, लेटली का मतलब क्या होता है, पिछले कुछ समय से। तो आप पहले ही बोल देंगे, लेटली आई वॉज बिजी विद माई फैमिली बिकॉज दे वर नॉट डूइंग वेल, आई हैव टू, यू नो, every time I have to see the doctor, so I was quite busy, that's why you could not see me, that was the reason Hmm. you could not see me. So lately I was busy in these things, in these stuff. पिछले कुछ दिनों को लेटली बोलूंगा. हाँ, किसी भी चीज में अगर बोलना आपको, लेटली आई एम नॉट डूइंग वेल, पिछले कुछ दिनों से मैं ठीक नहीं हूँ, लेटली माई हेल्थ इज नॉट गुड गोइंग वेल, आई एम फॉलिंग सिक। जैसे बोल देते हैं पिछले फ्यू डेज, 4 or 5 days की जगह ये कहते हैं लेटली. Yes, absolutely correct. You got it. Bang on. Wonderful. Next greeting. What's up? Mansoor, what's up? Actually, this month of May, and my children's school are closed. My children's school are closed, and nowadays I am playing with my kids. So you can say that I am busy with my children and in my office, and there is uh, no that things mm, which which can disturb me, because my children are very well. These are बीमारी से निकल चुके हैं, इसको क्या बोलें. हाँ, they are out of illness. Illness. They are out of illness. So nowadays I am happy So great, wonderful. and तो busy. WhatsApp का मतलब क्या चल, तो आपने बता दिया भाई, Hmm. ऐसी ऐसी सिचुएशन है, the schools are closed, they are at home, they were not doing well lately, but they are fit and fine now, they are out of illness, and they are enjoying their chutti holidays at home. Hmm. And these are the things which are going in my life right now. I'm also very happy. That's it. Wonderful. देखा शहबाज, इनको पता था तो इन्होंने फटाफट जवाब दिया। Yes. Now you also know, after practicing you can also respond with to these greetings, है ना? इंटरेस्टिंग है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है. और इधर सर एक चीज़ मैं ये भी शहबाज से कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें मुझे पता नहीं थी उतनी, लेकिन मैंने एक आध शब्द आपने जो बोला, मैंने वो शब्द पकड़ा और मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं. बहुत बढ़िया। एंड ये एक बहुत, आपके या साथ प्लीज, प्रैक्टिस करते हुए थोड़ा अंदाजा हो गया कि आप ये पूछ रहे हैं और इसका मीन्स ये हो सकता है. बहुत बढ़िया। तो क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें हम गेस कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, और आपने बहुत अच्छा गेस किया कि इसका मतलब ये हो सकता है। और बहुत सारी चीजें कभी कभी हमें लिटरल मीनिंग नहीं पता होती हैं कि इसका मतलब ये है, स्पॉइल का मतलब खराब है, लेकिन हमको सेंस मिल जाता है यार,
समथिंग इज रॉन्ग, यानी गलत की कुछ बात हो रही है, तो हम उससे मीनिंग सेंस निकाल पाते हैं कभी कभी। तो ये भी आप गेस कर सकते हो, ऐसा नहीं है कई बारी। हाँ, एकदम ब्लाइंड गेस नहीं करना है, एकदम वाइल्ड गेस नहीं करना है कि एकदम मतलब आम का इमली हो जाए, सुबह का शाम हो जाए, ऐसा गेस नहीं करना है कि रात का सुबह हो जाए। तो जहाँ लगे कि हाँ थोड़ा ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं तो हम कर सकते हैं। तो these were greetings. There are many more greetings which seems to be pretty similar. बोलने में सवाल वही है, हाउ आर यू ही है, लेकिन उसको बोला दूसरे तरीके से जा रहा है, तो इसको भी समझ के आप जरा जवाब दीजिए। ठीक है, गुड टू सी यू अगेन मंसूर, गुड टू सी यू अगेन। Good to see you again. Good to see you again. Yes, absolutely. First time when we had met, we are also happy. We were also happy on that time when we had met, and now this is second time we are meeting, and let's Again. go to take a cup of tea. And If you again, have time. this is a happy moment for us, for both of us. This आज is आप, happy moment. have you had your dinner? No, sir. So I what? have not. So what you took in supper? नाश्ते में, शाम के नाश्ते में क्या लिया था? Supper. What you took in supper? Roasted wheat puff. With a Roasted cup of wheat tea. puff. That is why your performance is out of the world today. You are bang on with all your answers, with all your understanding. You are bang on. बहुत बढ़िया, आज का परफॉर्मेंस बैंग ऑन एकदम। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू व्हाट यू टुक इन सपर। सपर का मतलब होता है शाम का नाश्ता। शहबाज, जैसे हम सुबह का नाश्ता सब लोग जानते हैं उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और बीच में जो 12-12 बजे खाते हैं उसको ब्रंच बोलते हैं, बट शाम के नाश्ता बहुत कम लोग जानते हैं, हम उसको इवनिंग स्नैक, इवनिंग टी, ये सब बोल के काम चला लेते हैं। बट when you know the best, why go for rest? So now onward you would call it supper, SUPPER। उसमें आर का साउंड थोड़ा हल्का रखेंगे, कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसका? सपर। Supper. So Supper. what you took in supper, what you had in supper, so you are doing absolutely wonderful today. So now the meeting is about to over in another minute or two because the time foundation. So you can join this meeting again with the same link because I have created a meeting. So same link can be used to join the meeting. Okay. So the moment it's get over, use the same link and join the meeting again. But it was a lovely performance. Indeed, it was a lovely performance from you. And like Shehbaz is always doing good. Like he's been, improving every passing day. He's working hard. He's practicing a lot, which is reflecting in his daily sessions, in his answers. That is a good sign. So these are the greeting things we get to know today. Hopefully, we are going to use it. हाँ, कुछ कहना चाहते हो शहबाज? नहीं। ठीक है, तो ग्रीटिंग की बात हो गई है, अब हम लेट्स मूव। हाँ, उसमें कुछ वर्ड्स भी हमने सीखे हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे आपसे मंसूर, कि आपको ऑलरेडी पता है कि नहीं। ठीक है, तो उन वर्ड्स को आपसे चेक करेंगे और उसके बाद वी विल मूव फर्दर विद द सेशन कि उसमें और क्या चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं हम सेशन में। ठीक है, तो लेट्स द काउंटडाउन हैज बिगन। It would be maybe 40 seconds, 30 seconds, 10 seconds, and the meeting, we all would disappear and we'll join again with the same link. This is interval for 2 seconds. This could be the interval. Picture abhi baki hai mere dost hain. This could be Let's finish this one. Picture abhi baki hai mere dost with this